Hello dear student, how are you? I am Arvind R. Again welcome to you in Co International Senior Secondary School online platform. ठीक है. Now today we have to discuss a chapter vector. ठीक है. This chapter is very important to understand Newton's law of motion. So there are some problems for the students in the directions, either whether the quantity is scalar or vector. So we have to eliminate योर डाउट टू टेकिंग दिस चैप्टर वेक्टर. ठीक है. कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा था, उनको डायरेक्शन लेने में समस्या हो रही थी, दिशा नहीं ले पा रहे थे, तो इस कारण से हमने सोचा फिर वेक्टर स्टार्ट कर लेते हैं. वेक्टर के साथ साथ में ही हम एनएलएम पढ़ते जाएंगे. ठीक है. सो हमने आज स्टार्ट करना है वेक्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट की. सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी. व्हाट डू यू मीन बाय द फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी से आप क्या समझते हैं. सो देखिए, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी so every quantity which is measurable, each quantity which is measurable, each quantity which is measurable, each quantity which is measurable is called physical quantity. Each quantity which is measurable is called physical quantity. ठीक है. हर ऐसी क्वांटिटी जिसको आप मेजर्ड कर सकते हो, इट इज़ ए टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. वो क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है. लाइक दिस इज ए पेन. इसकी आप लेंथ मेजर कर सकते हो तो ये फिजिकल क्वांटिटी है. इसका मास मेजर कर सकते हो तो ये फिजिकल क्वांटिटी है. अब बेसिकली वेक्टर्स में हमको बात करनी है, तो वेक्टर्स में जब भी आप बात करेंगे तो फिजिकल क्वांटिटी को हम दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है. फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, या फिजिकल क्वांटिटी कैन बी कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज व्हाट, स्केलर, and second one is what, vector. Physical quantity can be categorized by two ways, scalar and vector. Scalar is what, those physical quantity which have only magnitude. ठीक है. those physical quantity which can be described completely by its magnitude only. ठीक है. those physical quantity which can be represented in terms of magnitude only or which can be described in the form of magnitude only is called as scalar. ठीक है. those physical quantity which can be represented in terms of only magnitude is called scalar. So those physical quantity which can be described only by magnitude is called scalar. Okay. So those physical quantity which are described only by its magnitude, ठीक है, is and does not require direction is known as scalar quantity, and it obey ordinary law of algebra. ठीक है. ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ एलजेब्रा या ऑर्डिनरी लॉज ऑफ एलजेब्रा. अब लॉज क्या होते हैं एलजेब्रा में, जैसे एडिशन का लॉ, सब्ट्रैक्शन का लॉ, मल्टीप्लिकेशन का लॉ, डिवीजन का लॉ. तो जो ऑर्डिनरी लॉ होते हैं हमारे, वही फॉलो होंगे स्केलर में. ठीक है. तो फिर से सुने, स्केलर आपको क्या बताया, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच पजेस ओनली मैग्नीट्यूड, ऐसे भी कह सकते हैं दोज फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब वाई द मीन्स ऑफ ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एज स्केलर. ठीक है. फिर देखो, इट डज नॉट रिक्वायर डायरेक्शन. ओके. स्केलर क्वांटिटीज डज नॉट रिक्वायर एनी डायरेक्शंस और इट फॉलो नॉर्मल लॉ ऑफ एलजेब्रा, नॉर्मल एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स. ठीक है. या नॉर्मल लॉ ऑफ एलजेब्रा. फॉर एग्जाम्पल जैसे लेंथ, मास, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, etc. is an example of scalar. Distance, etc. okay, is an example of scalar. फिर हम इसके बाद आगे बात करें वेक्टर.
So those physical quantity which possess magnitude as well as direction, या those physical quantity which can be described by both magnitude as well as direction, magnitude as well as direction is called vector. ठीक है, those physical quantity which can be described with the help of magnitude as well as direction. So the physical quantity which required magnitude and a particular direction, ठीक है, which is expressed. अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो those physical quantity which possess magnitude as well as direction is called vector. एग्जाम्पल, अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, so example is displacement, velocity, acceleration, etc. is an example of vector. Okay, now vector quantity must obey the rules of vector algebra. स्केलर में हमने क्या पढ़ा था? इट फॉलो द नॉर्मल लॉ ऑफ एल्जेब्रा, बट वेक्टर विल नॉट ओबे नॉर्मल लॉ ऑफ एल्जेब्रा, इट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एल्जेब्रा. ठीक है, सो वेक्टर क्वांटिटी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ वेक्टर एल्जेब्रा, इट फॉलो द रूल्स ऑफ वेक्टर एल्जेब्रा. सच क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज वेक्टर. ठीक है, ये किसका फॉलो करती हैं? किसको फॉलो करते हैं? वेक्टर एल्जेब्रा को फॉलो करती हैं. वेक्टर एल्जेब्रा के बारे में हम सीखेंगे आगे. जैसे वेक्टर में प्रोडक्ट करेंगे तो दो टाइप का होगा, डॉट होगा, क्रॉस होगा. ठीक है ना. एडिशन का अलग रूल होता है. एडिशन में आई कैप के साथ आई कैप, जे कैप के साथ जे कैप, के कैप के साथ के कैप को ऐड कर सकते हैं. तो ये ऑर्डिनरी लॉ ऑफ एल्जेब्रा को फॉलो नहीं करते हैं, इसमें वेक्टर लॉ ऑफ एल्जेब्रा को फॉलो करते हैं. ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको? अच्छा, अब हम आगे बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर. ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर. किसी भी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमको इस पर ध्यान देना है. सो देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर आपका जो टॉपिक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर. नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर. ओके, ये है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर. सो अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग एन एरो ओवर द इंग्लिश अल्फ़ाबेट थ्रू विच द वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड. किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उस वेक्टर को जिस इंग्लिश अल्फ़ाबेट से हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके ऊपर एक एरो का साइन लगा देते हैं. ठीक है, एंड लेंथ ऑफ एरो इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर. जो लेंथ है एरो की वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है. बात समझ में आ रही है? मतलब जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा लंबी लाइन होगी वो. ठीक है, सो a vector is represented by a line headed with an arrow, its length is proportional to its magnitude. तो हमने जितनी बड़ी लाइन ये है तो इसका मतलब ये क्या है? वेक्टर है. और बड़ी लाइन बना देंगे, इसका मतलब क्या है? लेंथ ऑफ एरो जो है ना वो क्या करता है? मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है. जैसे ये अभी 5 मीटर की है, मैं और बड़ी कर दूं 7 मीटर की हो जाएगी. ठीक है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है वेक्टर का. क्या हो रहा है? मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता जा रहा है वेक्टर का. ठीक है, सो इट्स लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड. अब हमने यहाँ पे एक वेक्टर लिया पी क्यू और इसको मैंने कह दिया ए वेक्टर. तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? पी क्यू वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर. तो मैंने बी पुट एंड एरो साइन, इसके ऊपर एरो का साइन लगा दिया. यहाँ पे क्या होगा? लेंथ तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है एंड हेड ऑफ द एरो रिप्रेजेंटेड द डायरेक्शन. हेड जो है ना एरो का जो हेड है, हेड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर. हेड ऑफ द एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर. ठीक है, तो आपने ये रिप्रेजेंट किया ए वेक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, ए वेक्टर इक्वल टू पी क्यू वेक्टर. ठीक है, तो ये पी क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है. अब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं वेक्टर की. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड क्या होगा किसी वेक्टर का? बहुत बार बात आएगी इसकी. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, जब भी आप किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड सिंपली आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर. तो हमने यहाँ पे वो वेक्टर लिखा है एक सिंपली ए वेक्टर. इसका मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो आप सिंपली इसका मॉड लगा सकते हैं इसको
और सिंपली इसको ए लिख सकते हैं। अगर आपने मॉड लगा दिया इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको सिंपली आप ऐसे लिख सकते हैं, मॉड ए वेक्टर और ए। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर इक्वल टू मॉड ए और सिंपली ए। ये मैग्नीट्यूड की बात हो गई किसी भी वेक्टर की। अब मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, इसको थोड़ा सा आगे सीखेंगे, थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे हम। ठीक है, कि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद आगे हमको बात करनी है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की। ठीक है, कितने टाइप के वेक्टर होते हैं उनकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वेक्टर। सो देखिए, टाइप्स ऑफ वेक्टर में हमने सबसे पहले बात करनी है टाइप्स ऑफ वेक्टर में पोलर वेक्टर। किसकी बात करेंगे, पोलर वेक्टर की बात करेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर में पहली आपकी जो हेडिंग है वो है पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर्स क्या होते हैं, दोज वेक्टर विच हैव ए स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, दोज वेक्टर्स विच हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट और पर्टिकुलर स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, इज कॉल्ड एज पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स विच हैव इनिशियल पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आर कॉल्ड एज पोलर वेक्टर। फॉर एग्जांपल जैसे डिस्प्लेसमेंट, ये एक पॉइंट हो गया जहाँ से हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट करना शुरू किया। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, अब आगे चलना शुरू करूँगा तो मैं क्या हो रहा हूँ, डिस्प्लेस्ड हो रहा हूँ मैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन से। सो ये क्या बताया, दोज वेक्टर विच हैव ए स्टार्टिंग पॉइंट, दोज वेक्टर विच पजेस ए स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज कॉल्ड एज पोलर वेक्टर। स्टार्टिंग पॉइंट होगा और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा, इज कॉल्ड एज पोलर वेक्टर। ठीक है, फिर देखो ये इसका इनिशियल पॉइंट हो गया, इनिशियल पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट ठीक है, सो इसको आप कौन सा वेक्टर कहेंगे, पोलर वेक्टर। ठीक है, लाइक एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट और फोर्स और एक्सेलरेशन is an example of polar vector. Acceleration is an example of polar vector. ठीक है, so polar vector क्या, those vector which have a starting point or point of application is called as polar vector. next है एग्जाम्पल भी लिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सियल वेक्टर। ठीक है, दोज वेक्टर विच रिप्रेजेंट द रोटेशनल इफेक्ट। किसको रिप्रेजेंट करें, वो रोटेशनल इफेक्ट को जो रिप्रेजेंट करें। दोज वेक्टर विच रिप्रेजेंट द रोटेशनल इफेक्ट इज कॉल्ड एज एक्सियल वेक्टर। ओके, दोज वेक्टर विच रिप्रेजेंट दी व्हाट, रोटेशनल इफेक्ट। रोटेशनल इफेक्ट को जो रिप्रेजेंट करें उसको आप कौन सा वेक्टर कहते हैं, एक्सियल वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो दीज आर द वेक्टर यूज टू रोटेशनल मोशन टू डिफाइन द रोटेशनल इफेक्ट। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल फैन इज रिवॉल्विंग अराउंड ए फिक्स्ड एक्सिस, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रोटेशनल वेक्टर या एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं, दोज वेक्टर विच रोटेट अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। ठीक है, डेफिनेशन में आप ऐसे कह सकते हैं, दोज वेक्टर विच रोटेट अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। ठीक है, विच रोटेट अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस इज कॉल्ड एज एक्सियल वेक्टर। सो हमने बात की नेक्स्ट किसकी, एक्सियल वेक्टर की। तो एक्सियल वेक्टर आपको क्या बताया, दोज वेक्टर विच रिप्रेजेंट दी रोटेशनल इफेक्ट। ठीक है, और विच रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस इज कॉल्ड एज एक्सियल वेक्टर। ओके, इज कॉल्ड एज एक्सियल वेक्टर। अब एक्सियल वेक्टर में आप देखिए, जैसे हमने क्या किया, एक एग्जांपल लिया, ये आपका एक फिक्स्ड एंड हो गया। यहाँ पे हमने एक रॉड लगा दी और यहाँ पे ये कोई रोटेशनल इफेक्ट कर रहा है, फैन हो गया मान लो, ऐसे रोटेट कर रहा है ये। ठीक है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, चारों तरफ ये रोटेट कर रहा है। थोड़ा और अच्छा बना लेते हैं, देखिए
ऐसे ये रोटेट करेगा तो रोटेशनल इफेक्ट हो गया, मतलब आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, सो एक्सियल वेक्टर क्या हो गया, दोज वेक्टर विच रिप्रेजेंट द रोटेशनल इफेक्ट। ठीक है, इज कॉल्ड एज एक्सियल वेक्टर। अब रोटेशनल इफेक्ट में हमको डायरेक्शन कैलकुलेट करनी पड़ेगी, इसकी क्या करना है, हमको इसकी डायरेक्शन बतानी है। ठीक है, सो डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर इज ऑलवेज अलोंग इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, कैसे होगी, हमेशा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। द डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड इट कैन बी डिटरमाइंड बाय राइट हैंड रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल। ठीक है, राइट हैंड स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, सो द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर कैन बी कैलकुलेटेड बाय राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड रूल। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करें, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, उस रूल के बारे में जानते हैं पहले तो हम, वो रूल क्या होता है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ वी स्ट्रेच आवर राइट हैंड सच दैट thumb finger and thumb are mutually perpendicular to each other. ठीक है, so the direction in which thumb rotates, the direction in which finger rotates is the direction of rotation of vector. The direction in which finger rolls, ऐसे भी कह सकते हैं, finger rolls, जिस डायरेक्शन में फिंगर क्या कर रही है, रोल्स कर रही हैं, रोल कर रही हैं, तो द डायरेक्शन इन विच फिंगर रोल्स इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ बॉडी एंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी। डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, हमेशा कैसे होगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होगी। कैसे, तो देखो जैसे ऐसे रोटेट कर रहा है, ये मैंने बताया, ऐसे कर्ल्स कर रही हैं फिंगर, ऐसे रोल्स कर रही हैं, तो हमारा थंब कहाँ है, अपवर्ड है, तो वेक्टर की एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन कैसे होगी, अपवर्ड। अब लेकिन अगर ये ऐसे रोल करें ऐसे, तो ठीक है, रोटेशन ऐसे कर रही हैं, तो कैसे है, इसकी थंब की डायरेक्शन कैसे, डाउनवर्ड है, तो इस वेक्टर एक्सियल वेक्टर कैसे होगा, डाउनवर्ड होगा। और समझ लेते हैं अच्छे से, देखो ये सपोज दैट ये आपकी एक बॉडी है जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। कैसे रोटेट कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। ये 3D डायग्राम में थोड़ा जरा ध्यान दें, ये कैसे रोटेट कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। तो अब आपकी जो वेक्टर की डायरेक्शन होगी, एक्सियल वेक्टर की, वो परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन होगी। वो कैसे होगी, अपवर्ड होगी, जैसे इसमें दिख रही है आपको, ये अपवर्ड होगी। देखो ये ऐसे रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये फिंगर ऐसे दिखा रही हैं, तो डायरेक्शन कैसे है, अपवर्ड। कैसे डायरेक्शन, अपवर्ड है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, इफ़ इट रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करें, कैसे रोटेट करें, क्लॉकवाइज रोटेट करें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती हैं, तो देखिए डायरेक्शन कैसे आएगी, डाउनवर्ड आएगी। क्यों, क्योंकि देखो अब the direction in which finger rolls is the direction of rotation of body and the direction of axial vector is perpendicular to its plane, या हम ऐसे भी कह सकते हैं along the axis of rotation, along the axis, तो ये axis बन रही है तो along the axis of rotation बनेगी ये। ठीक है, ये समझ आ गया आपको। so this is the direction of axial vector which can be determined by right hand rule। कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, राइट हैंड रूल से। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क। जितने भी इसके एग्जाम्पल हैं वो सारे क्या होंगे, एंगुलर बॉडीज होंगी। ठीक है, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ कि कोई बॉडी है, इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट है उसका, ठीक है, सर्कल में मूव कर रही है। ये हमने एक यहाँ पे क्या बनाया, एक सर्कल बनाया। ठीक है, अब कोई बॉडी है, जो बॉडी है स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करता है, ये एक रेडियस वेक्टर हो गया इसका पी पॉइंट पर। कहाँ हो गया रेडियस वेक्टर, पी पॉइंट पर। थोड़ी देर बाद ये कहाँ पहुँच गई, क्यू पॉइंट पर पहुँच गई। तो ये इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया थीटा। ठीक है, तो अब ये कैसे मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये क्या हो गया, एक्सियल वेक्टर हो गया। कौन सा वेक्टर हो गया आपका, एक्सियल वेक्टर हो गया। इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। कैसे होगी, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ठीक है, अब हम ऐसे रोटेट करवा के देख लेते हैं। अगर ये पी से क्यू गई तो ऐसे ही तो गई, ऐसे मूव कर रही है इस डायरेक्शन में। ठीक है,
तो परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन आउटसाइड, लेकिन अगर ये ऐसे मूव करती तो इनसाइड हो जाता। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गई, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर एक्सेलरेशन, ऑल आर द एग्जांपल ऑफ एक्सियल वेक्टर्स। ठीक है, तो ये आपका बेसिक पोलर और एक्सियल वेक्टर के बारे में हुआ। और कुछ हमको टाइप्स पढ़ने आगे वेक्टर के, जैसे इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, अपोजिट वेक्टर क्या होते हैं, कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप इतना पढ़ के आइएगा, तब फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।